बनी तो नहीं थी दे दे Hello. हॉटस्पॉट. Yes, good evening all. Am I audible? Good evening, sir. Yes, good evening. गुड इवनिंग सर. Good evening. Am I audible to you clearly? Yes, sir. यस. And slides are also visible? Am I right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. Okay. So, yesterday we stopped the session here. Okay. So, what is happening here? That we are discussing about the Bohr model, and we discussed that energy states are quantized for atom. Okay, so it is n1, n2, n3. These are the different class, or you can say energy level. Energy level available for electrons. Okay. So other, please mute yourself. Okay, keep your if you have any doubt, then you can mute. Otherwise, keep your mouth muted. Okay. So these are the things we discussed, and according to that, we just hypothesize this type of atom. Okay. So nucleus is at the center, and there are different class. Okay, which are surrounding the nucleus. Okay, this class is known as N1, N2, N3, like that. Okay. So yesterday I asked one question to you. Okay. So this is the transition. Okay. From here you can say from N2 electrons are jumping from N2 to N1. Okay. N3 to N1, N4 to N1, like that. Okay. Means from all other higher energy states, electrons are jumping in N1 state. Okay. Finally, the electrons are coming N1. Okay. Same thing. So it is known as a Lyman series. When electrons are jumping from higher state to N2 state, then it is called as a Palmer series. And when these all high states electrons are jumping in N3, then it is known as a Paschen series. Okay. So from this explanation, can you tell me that in which series we will get highest energy? Lyman, sir. Yes, Lyman. Very good. Okay. Right. Yes. So from here we will get highest energy. Energy is always denoted by h nu, E is equal to h nu, or E is equal to mc square. Okay. If it is particle, then it is known as a mc square. This is the very common formula for energy. You need to remember. Okay. Because you are, it is the basic formula. This both formula are applicable for energy. Okay. E is equal to h nu and E is equal to mc square. So what is the difference between these two formula? If we are dealing with wave means what? We know na, this is the wave. Okay. Then this formula will be applicable. And if we are considered as a particle, okay, so this formula will be applicable where m is mass of particle, c is speed of particle, and E is energy. Here h is equal to Planck constant and nu is equal to frequency. It is also equal to E. Okay. So according to your situation, you need to use this formula. Okay. So here the energy, only energy is means energy is emitting here. Okay. So there is no particle, only energy. Okay. Energy is not form of particle. Energy is energy. So we will not use this formula. Okay. We will use only E is equal to h nu. Okay. Because it is a wave. Okay. So E is equal to h nu. Okay, and it will be highest. Why it will be highest? Because if you will see, the gap between N1 and N2 is higher, and all electrons are jumping from higher energy state to N1. Okay, but see, if electrons are jumping, if electrons are, please mute yourself. Anil, please mute yourself. Okay, so if electrons are jumping from N3 to N1, okay, we will take one example, one simplest example. See, if electrons from N3, okay, from N3 it is jumping in N1, okay, and from N3 it is jumping from N2. So obviously,
here it will also emit energy, and here also it will emit energy. But this energy h nu 1 we can say, and it is h nu 2. Okay, so obviously which energy will be higher? So this energy will be higher, h nu 1. This energy will be higher. Why it is higher? Because we can say that energy, suppose how? Okay, so we can see this gap. If this gap is higher, then obviously energy difference is higher. Okay, then how we will calculate the energy here? Okay, suppose in N1 energy is E1. Okay, here N2 the energy is E2. Okay, and here energy is E3. Okay, so can we write now what will be the h nu 2 in the form of E1, E2, E3? Okay, I am writing here for h nu 2. H nu 2 will be equal to energy of E3. Initially electron has energy E3, na? Yes, sir. Then now electron are jumping in N2 here, so energy will be E2. So difference E2. between, yes, so difference between E3 minus E2 will be equal to the energy which is released. Okay, here if Sure. you are not able to see this sign, I am writing here. Okay, E3 minus E1. Okay, the gap between these two energy will be okay equal to h nu 2. Yes, Anshul? सर तुम्हें क्या कॉलेज में टाइम नहीं मिलता जब बच्चों को रात का टाइम खराब करो कौन इसको क्या, what is this? Yes, Anshul, what happened? Anshul, what happened? Okay, so this energy gap will be equal to delta E. Okay, we can say delta. And then what will be the h nu 1 equal to? H nu 1 equal to what? E3 minus E1. Yes, E3 minus E1. ठीक है ना? Starting में energy E3 थी, so E3 minus E1 will be also equal to h nu 1. Okay, so from here we can say clearly that energy gap between E3 to E1 is higher compared to E3 to E2. This energy gap is very less compared to this energy gap. Okay, up to here. So this is the clear how electrons are jumping and how we can calculate energy of different transitions. Okay. So now we are going to discuss about the emission and absorption spectra. Okay. So here these all things are, you can say this is the emission spectra. Okay, emission spectrum means what? Electrons are jumping from higher state to lower state and it is emitting energy. Okay, तो जब भी एनर्जी छोड़ता है उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा. ठीक है, यहाँ भी एनर्जी छोड़ रहा है, हर जगह एनर्जी छोड़ रहा है तो उसको इमिशन बोलते हैं. इमिशन मतलब छोड़ना. और जब यहाँ से सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे जाएगा हायर स्टेट में, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ठीक है, तो दो चीज हो गई, एक तो इमिशन और एक हो गई एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो दोनों चीज को ध्यान रखिए. ओके, सो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा we are going to discuss about that. The spectrum of radiation emitted by the substance that has absorbed energy is called emission spectrum. Okay, same thing. कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ ऊपर हायर स्टेट में है, यहाँ से यहाँ नीचे कूद रहा है, तो ये एक एनर्जी, सॉरी, ये यहाँ पे एनर्जी छोड़ेगा, तो इसको कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा. ये एच नहीं, इसको कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा क्योंकि एनर्जी छोड़ रहा है. सेम थिंग दूसरा केस क्या हो सकता है? एटम molecule on ion that have absorbed radiation are said to be excited. Okay, excited means जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी हायर एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट में चला जाएगा. मैंने आपको बताया ना, जब यहाँ से यहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे जो इसकी यहाँ से कूदा था यहाँ पे आया. ठीक है, तो ये इसकी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है. मतलब ये
इसमें एनर्जी है, इसलिए इसको एक्साइटेड बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई वट एवर। ओके, एक्साइटेड मीन्स वी आर वेरी इंटरेस्टेड और वी आर वेरी एनर्जेटिक अबाउट दैट। ओके, सो हियर when any atom or we can say electron, here we are discussing about the electron. So when a electron will gain energy and will transport to higher energy state, it will call its excitation state. Okay, so this is the excitation state. The study of emission and absorption spectra is referred to as spectroscopy. अच्छा, तो ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन गया तब इसने ऊपर जंप किया तो ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और जब ये वापस नीचे आएगा तो ये एनर्जी छोड़ेगा। बट ये हमारे क्या काम का है, ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, वो पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट होगी। जैसे सोडियम हमेशा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम हमेशा सपोज कोई भी एनर्जी यूनिट है 10 यूनिट, वी कैन से, अगर वो 10 यूनिट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमेशा 10 यूनिट ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट समझ लो आप, तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर आप आपका सैंपल डालोगे और अगर वो 10 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आपके सैंपल में सोडियम है। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन के लिए सपोज 1 यूनिट होगा। ठीक है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का सब मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है आपका सैंपल में एलिमेंट एनालिसिस करने का। ठीक है, आप पॉलीमर में हो तो आपको ये चीजें आगे करनी पड़ेगी कि आप मतलब पॉलीमर में क्या क्या डाला है, कौन कौन से एलिमेंट है, क्या क्या है। तो ये एक तरह की कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है। ठीक है ना, जैसे आपका सोना है, जैसे आपने सोना खरीदा, हाँ, तो जैसे आपने सोना खरीदा तो सोने को कैसे पता करेंगे आप कि ये सही है या गलत, मतलब ये प्योर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? उसका कैरेट चेक करते हैं। हाँ, कैरेट चेक कर रहे हैं, तो कैरेट तो मैंने सपोज कैरेट किसी ने लिख दिया कि चलो ये 24 कैरेट का सोना है, तो आप कैसे उसको पता करेंगे कि ये मतलब सोना होगा नहीं होगा? उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ आपने देखा है वहां पे, मतलब किसी ने सोना खरीदा हो या किसी ने बेचा हो, तो जब आप वहां पे जाते हैं सोनार के पास, तो वहां पे एक मशीन लगी हुई होती है, उस मशीन से उसको चेक करते हैं, उसमें रखते हैं सोने को और उसमें कुछ देखते हैं। वो किसी ने किया, किसी का एक्सपीरियंस है उसमें? किसी का नहीं एक्सपीरियंस है सर। उसमें? नहीं, कभी मतलब सोना किसी ने मतलब जब हम बेचने जाते हैं स्पेशली, ठीक है, खरीदने जाते हैं तो उसमें हॉल मार्क लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो हम, देखो हमेशा क्या होता है कि हम दुकानदार पे विश्वास कर लेते हैं कि वो सही सोना दे रहा है, बट दुकानदार हम पे विश्वास नहीं करता है कभी कि ये सोना सही लाया होगा, इसलिए वो क्या करेगा, उसको मेल्ट करेगा। ठीक है, मेल्ट करने के बाद उसको मशीन से चेक करेगा, तो फिर वो बोलेगा कि आपका सोना कितना प्योर है। ठीक है, तो अभी अब कभी आप सोनार के पास जाओ तो देखना वो क्या करता है। वो एक मशीन होती है, उसमें आपके सोने की एक प्लेट हल्की सी परत को बना के रखता है। ठीक है, उस पर लाइट गिरती है। ठीक है, तो वो लाइट है ना जो उसके ऊपर गिर रही है, ठीक है, तो उसमें से कुछ लाइट सोना एब्जॉर्ब कर लेता है, और सोना कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अगर वो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो आप बोल सकते हो कि ये सोना है, और कितनी हो रही है, क्योंकि कुछ तो सोना होगा, सब 50% भी सोना है तो भी वो लाइट तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी आनी चाहिए। जैसे कि ये पीक आ रही है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर ये ऐसी पीक आती है तो सपोज मेरा प्योर सोना है, लेकिन सपोज ये पीक, सॉरी, सपोज ये इतनी इंटेंसिटी आनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मली, बट आप जो सैंपल लेके जा रहे हो, सपोज उसकी इंटेंसिटी यहीं पे आएगी, इसी पोजीशन पे, बट इतनी सी आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका सोना है बट प्योर नहीं है, कुछ इम्प्योरिटी है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम है। ठीक है ना, तो ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। तो जो आपका जो स्पेक्ट्रा है, ये एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, ठीक है, जो लाइट छोड़ रहा है और जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे आप पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट होगा। समझ में आया इसका क्या यूजफुल है, इसका उपयोग क्या है, पता चला?
इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या उपयोग है पता चला? जी सर। हाँ, ये टेक्निक है जिससे कि देखो, एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक छोड़ेगा। मतलब सपोज एक एग्जांपल ले लो कि कोई चीज है, ठीक है, मतलब वो यहाँ से, जैसे सोडियम का गैप इतना है, ठीक है, दो एनर्जी स्टेट का, तो ये एनर्जी इतना ही एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का गैप बहुत कम होगा, इतना सही होगा, तो वो इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो आप तो दे रहे हो एनर्जी यहाँ से, अगर आपने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये मेरा सोडियम है। ठीक है, और अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप बोल सकते हो हाइड्रोजन है। ठीक है ना, समझ गए? तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है। आपने लाइट दी, ठीक है, फिर आपने वापस जो लाइट को सेम, सपोज ये आपका सैंपल ले लिया, आपने एक बीकर ले लिया, इसमें आपका सैंपल है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें आपका सैंपल भरा हुआ है, इधर से आपने टॉर्च लगाई, ठीक है, ये आपका होगी टॉर्च। ठीक है, तो यहाँ से आ रही लाइट, अब देखिए यहाँ से आ रही है आपकी लाइट, एक, ठीक है, तो यहाँ से आपकी कितनी रेज मैंने बताया है, 3 रेज आ रही थी। ठीक है, लेकिन जब वो सैंपल से गुजरेगी तो उसके बाद 2 रेज ही रही, मतलब एक रेज अब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ डिटेक्टर लगा रखा है, तो वो बता रहा है कि एक पर्टिकुलर जो बीच वाली रेज थी वो हट गई है। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी, इस रेस की जो एनर्जी होगी वो इसने एब्जॉर्ब कर ली है सैंपल में। तो वो आपका, अब आपको मेजर करना पड़ेगा कितनी एब्जॉर्ब हुई है उसको। आपको सपोज आपकी 10 यूनिट एब्जॉर्ब हुई है, तो आप ये बोल सकते हो कि 10 किसकी होती है, तो आप पता करोगे सोडियम की होती है। ओके, तो इसका मतलब मेरे इस सैंपल में सोडियम आयन प्रेजेंट है, बोल सकते हैं ना सर? समझ में आ गया कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये चीज होती है एब्जॉर्प्शन का, और इमिशन का भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इस टेक्निक को। देन दे emit light only at specific wavelength with dark space between them. Such spectra is called line spectra or atomic spectra. ठीक है, तो सेम थिंग होगी आपका, जैसे एब्जॉर्ब हो रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो इमिशन करेगा। ठीक है ना, तो दिस और वो पर्टिकुलर लाइन स्पेक्ट्रा होगा। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा का क्या मतलब हुआ? लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब हुआ कि आपका एक एनर्जी, यहाँ सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ मैं बोल देता हूँ कि ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या होती है पता है आपको? इंटेंसिटी तीव्रता, इंटेंसिटी को हिंदी में हम बोल सकते हैं तीव्रता। ठीक है, और ये है आपका एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से मुझे कुछ, ठीक है, ये से मेरी इंटेंसिटी मिलेगी सपोज। ठीक है, तो ऐसी इंटेंसिटी क्यों मिल रही है मेरे को? मतलब मुझे कुछ लाइन ही मिल रही है। सब सपोज मैं मेजर कर रहा हूँ एनर्जी, एनर्जी मेरा एक्स एक्सिस में जा रहा है और इंटेंसिटी मेरी वाई एक्सिस में जा रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं मुझे इंटेंसिटी मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो एटम है ना, जो भी एटम है वो एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी ही छोड़ सकता है। ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया ना, ये आपके अलग अलग स्टेट है, एनर्जी स्टेट। तो सपोज यहाँ से कूदा यहाँ पे, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर वाले से सबसे नीचे वाले में कूद रहा है, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर इसके बीच में जितनी भी स्पेस है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो ये खाली रहेगा। तो ये वाला जो स्पेस है ये खाली है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ से यहाँ कूद सकता है, तो ये एनर्जी होगी, तो फिर उसके लिए ये वाली एनर्जी है। ठीक है, ये वाली। फिर वापस इसके बीच में ब्लैंक रहेगा, तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह से मतलब पर्टिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ट्रांजिशन वहीं पॉसिबल है। दैट्स वाई आपका फिक्स एनर्जी पीक्स आपकी फिक्स एनर्जी वैल्यू पे ही मिलेगी, सारी वैल्यू पे नहीं मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा मीन्स हमको स्पेक्ट्रा में लाइंस मिलेगी। ठीक है, और वो क्यों मिलेगी? क्योंकि आपके एनर्जी स्टेट सब बटे हुए हैं, क्वांटिसाइज्ड है। अगर टेक्निकल वर्ड में बोले तो दे आर क्वांटिसाइज्ड। ओके, अदरवाइज हम देसी भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे से दूर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे है। मतलब जैसे आपकी सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी लेडर,
लेडर पे आप चढ़ोगे तो क्या करोगे, एक स्टेप पे चढ़े फिर दूसरे स्टेप पे चढ़ना पड़ेगा ना। आप पैर बीच में रख सकते हो क्या, हवा में नहीं रख सकते हो। सेम थिंग यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन या तो नीचे वाले स्टेप पे रहेगा या उसके ऊपर वाले स्टेप पे रहेगा, बीच में हवा में नहीं रहेगा। इसलिए ये एनर्जी जो ये हवा वाली एनर्जी है ये पॉसिबल नहीं होगी, पर्टिकुलर आपका जो एनर्जी स्टेट है वही पॉसिबल होगा। समझ में आ गया ये चीज, ये समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्यूचर में आपको आ गया सर। बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अब हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंट क्या होता है कि सपोज आपका ये आपकी है उंगली, एक ये धागा है, यहाँ आपने पत्थर बांध के इसको आप घुमा रहे हो, ये सब करते हैं ना वैसे, मतलब जनरली हमारे गांव में हम खेलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या किया मैंने, हाँ ये पूरा सर्कल है, थोड़ा मैं सर्कल सही नहीं बना पा रहा, या फिर देखिए मैं अच्छा बना पा। देखिए ये मैंने क्या किया कि ये सपोज मेरी उंगली है, रेड वाली मेरी उंगली है, यहाँ से मैंने एक धागा बांधा, धागा बांध के एक पत्थर को बांध दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, चक्र की तरह घुमा सकता हूँ ना, चक्र चक्र की तरह घूमता है ना। क्या किया मैंने, एक पत्थर लिया, धागे से बांधा और उसको चक्कर से घुमा रहा हूँ। ठीक है, बस ये चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी होगी, यहाँ ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रखा, मैं भी ओमेगा बोल देता हूँ, ये ओमेगा है ना। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी मतलब वेग या गति। ठीक है, ये होगा। और एंगुलर मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ अभी क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका एंगुलर मोमेंट होता है। ठीक है, तो आपका जो एंगुलर मोमेंट है वो सिंपली क्या होगा, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा इनटू आई, आई इज इनर्शिया। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको आगे की स्लाइड में पता चलेगा। ठीक है, आगे की स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा ये क्यों पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी आप ये नोट कर लीजिए और आपको समझ में आ गया ना कि ये क्या होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंट क्या होता है, जो आपका ये एंगुलर वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने जो बोला था वो क्या बोला था कि जो एंगुलर मोमेंट होता है वो एम ई आर स्क्वायर, ठीक है, आई इंटू डब्ल्यू होता है। आई जो होता है, आई क्या मैंने बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है, एम, एम फॉर मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम स्मॉल ई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर क्या था आपका रेडियस, जो मैं घुमा रहा था ना ऐसा, ऐसे करके, ये यहाँ पे ये पत्थर था और इसको मैं ऐसे घुमा रहा था। ठीक है, तो ये इसका था ओमेगा, तो ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये आपका रेडियस था। तो एम ई फिर फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर इज फॉर रेडियस, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। देन ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी फॉर वी, गति, मतलब एक तो एंगुलर, ये एंगुलर वेलोसिटी है। देखिए, एक तो एंगुलर वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी में फर्क है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी तो हो रही है लेकिन एक एंगल में हो रही है, मतलब ये कंटिन्यू, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं। देखो वेलोसिटी क्या होती है, जैसे ये कार चल रही है इधर से इधर, ये वेलोसिटी हुई। ठीक है, लेकिन अगर ये पत्थर ऐसे घूम रहा है तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी और ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस, समझ में आ गया ना।
जी सर। वेलोसिटी स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी आपका एक एंगुलर नेम, इट्स नेम से मींस एंगुलर, सम इट इज मूविंग इन सम एंगल। ओके, तो जो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v अपॉन r। ठीक है, तो ये हो गया, हम दोनों दोनों की वैल्यू रख दी हमने, आई की वैल्यू ये रखी और ओमेगा की वैल्यू ये रखी। देन वी विल सिंप्लीफाई इट, सो r विल बी कैंसल फ्रॉम हियर टू हियर, एंड फाइनली देखो r कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एम ई वी आर, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू आई। तो फाइनली हमारा नो नॉट नॉट आई, सॉरी, इट विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंट। तो आपका फाइनली एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, एम ई वी आर। ठीक है, आपका फाइनली फॉर्मूला आ गया एम ई वी आर, ये मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, सिंपल है बहुत। ठीक है, तो एम ई वी आर आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपको भी अब नेक्स्ट में काम आएगा, ये है आपका एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने क्यों डिराइव किया है, दिस आई एम गोइंग टू मास एम एंड लाइनर वेलोसिटी इज v। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस abbreviation. Okay, then the frequency of radiation absorbed or emitted when transmission occur between two stationary state get different energy by delta is given by, तो आपका जो हाँ, तो जो आपका एनर्जी स्टेट है, जो आपका एनर्जी स्टेट है वो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था अभी, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। हाँ एच न्यू, ठीक है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता है ना। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ इसको एच को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, ठीक है ना। तो अगर एच को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा ई मतलब कि दो एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे यहाँ से यहाँ हो रहा है, ये आपका E2 है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही तो एनर्जी ये छोड़ेगा, एटम। ठीक है, तो इस एनर्जी गैप को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा ई। ठीक है, इस एनर्जी गैप को हम बोल रहे हैं डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, अब तो सिंपल से आया ना, डेल्टा ई वैल्यू क्या होगी, E2 माइनस E1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लिखा हमने, यस सर। सिंपल है ना बहुत ये फॉर्मूला तो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, न्यू आ गया। अब द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिसाइज्ड। क्वांटिसाइज्ड मतलब मैंने क्या कहा कि कंटिन्यू नहीं होके कुछ स्टेप में है, जैसे आपकी सीढ़ी में स्टेप्स फिक्स है ना, वैसे एंगुलर मूवमेंट भी फिक्स्ड है। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट और यू कैन से एनर्जी, ओके, ये फिक्स्ड है। तो ये कैसे है, अब हम फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। ठीक है, अभी हमने समझ लिया फिजिकली तो, ठीक है, विजुलाइज कर लिया, बट उसको मैथमेटिकली भी तो सोल्व करना पड़ेगा ना, अदरवाइज वी हैव टू सोल्व ईच एंड एवरीथिंग बाय न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज वी कैनॉट मूव ऑन ओनली हाइपोथेसिस। ओके, मतलब आप कुछ अपना बना लिया, सोच लिया, ऐसा होता है, लेकिन कोई बात आपकी मानेगा नहीं जब तक आप उसको मैथमेटिकली डिराइव नहीं करते हो। तो मैथमेटिकली डिराइव करना बहुत जरूरी है उस चीज को। तो हमने ये वाला फॉर्मूला देखिए। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर जो हमारा जो ई से जो डेल्टा ई हम निकालते हैं, हम्म, E6 से E5 से E4 E3 E2 E1 तक जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन जब एमिट करेगा हम्म, एनर्जी को, तो ये 1/1 जाएगा। हम्म, तो E6 से E5 पे आएगा, फिर E4 पे आएगा। हाँ, तो हम जैसे लिखते हैं E6 माइनस E1 डायरेक्टली लिखते हैं, हम्म, क्या वो सही है, या E6 माइनस E5 प्लस E5 E6 माइनस E4, या ऐसे करके कैलकुलेशन होता है कुछ, दोनों सेम रहेगा मतलब ना। 1/1 हाँ हाँ, दोनों कोई मीन्स दिक्कत वो। नहीं। हम्म। नहीं नहीं, आप पूछ रहे हो कि जैसे यहाँ से यहाँ है, इसके बीच में दो हाँ, एनर्जी तो दो। 1/1 हाँ, खेल जा रहा है वो। हाँ। अगर आपको यहाँ से यहाँ की वैल्यू पता है, ठीक है, हाँ। यहाँ से यहाँ की वैल्यू पता है और यहाँ से यहाँ की वैल्यू पता है, आप तीनों को तो भी आप पता कर सकते हो टोटल वैल्यू। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ की हाँ। वैल्यू पता है और एक यहाँ की वैल्यू पता है, तो भी मैं इसको माइनस करके पता कर सकता हूँ ना।
वो दोनों सेम ही चीज हाँ है। वो भी हो सकता है। हाँ, तो वो आप जो बोल रहे हो ना, वो दोनों सेम चीज है। मतलब देखो, ये सीधा डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस एक तरह से मेजर किया, हाँ। ठीक है। तो अगर हम्म। मुझे स्टेप बाय स्टेप पता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ 20, यहाँ एनर्जी 20 है और यहाँ एनर्जी 2 है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा? 18। सिंपल सी बात है। और हम्म। सपोज मुझे ये पता नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया सबसे इजी मेथड। सपोज मुझे ये एनर्जी पता नहीं है, ठीक है, मुझे कहाँ क्या पता है, यहाँ से यहाँ का 20 है और यहाँ से यहाँ की 10 है और यहाँ से यहाँ की 8 है, ठीक है। तो भी हम पता नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये तो पता हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यू, चलो 20 की कोई वैल्यू नहीं पता है तो कर सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं पता है और हमको ये वैल्यू पता है, तो हम इसको इसका एस्टिमेट कर सकते हैं ना। देखो 20 से 10, ये 10 तो यहाँ हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितनी होगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? अगर 8 लिखे हैं अपन, तो 6, ये वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों के बीच की 6 हो जाएगी, इन दोनों के बीच की 2 हो जाएगी और इन दोनों के बीच की 10 हो जाएगी। तो अब हमारा दो सर बाई तो हमारा जब जो डिस्टेंस अगर हम इक्वल लेते हैं, जितना वो एनर्जी उसको वापस जाने में लगता है उतनी वो आने में एमिट करेगा। हाँ तो हाँ। क्या जितने भी शेल्स हैं हमारे E6 E5 E5 E4, तो क्या इक्वल डिस्टेंस मान के हम काम करते हैं या नहीं नहीं अलग नहीं, अलग डिस्टेंस भी रहता अलग है? अलग अलग डिस्टेंस होता है, सबका अलग अलग डिस्टेंस होता है। मतलब कि आपका तो न्यूक्लियस फिर है ना। सर डिस्टेंस चेंज होगा तो एनर्जी भी तो चेंज होगा हाँ सर। हाँ, एनर्जी चेंज होगा ना। तो इसीलिए तो मैं हाँ। अभी देखिए, इसमें मैंने सेम एनर्जी नहीं रखा है ना। देखिए 20 से 10, इन दोनों के बीच में हम्म। मैंने 10 की एनर्जी रखी है, मतलब अलग अलग होता है सबका। हम्म। क्योंकि ये अलग अलग क्यों होगा? कि आपका बीच में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है, सॉरी। हम्म। तो न्यूक्लियस के पास हम्म। में रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो तो काफी टाइटली अट्रैक्ट रहेगा ना इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से। हाँ। अगर सपोज बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, सपोज हम्म। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो वो तो हम्म। न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उसका कोई मतलब ज्यादा उसमें अट्रैक्शन नहीं हम्म। रहेगा। बट ये तो इसके पास में है ना, तो हम्म। इसकी एनर्जी इससे डिसाइड होती है कि जैसे कोई क्लास चल रही है, जो फ्रंट बेंच में जो बच्चा बैठा है वो टीचर से ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा ना। वो कुछ कुछ मोबाइल नहीं चला सकता है या हम्म। कुछ इधर उधर बात नहीं कर सकता है ना। लेकिन जो लास्ट हम्म। बेंच में बैठा है, तो उससे टीचर का कांटेक्ट नहीं रहेगा ना, समझ रहे हो। तो वो उसका हम्म। एनर्जी स्टेट वो सब कुछ अलग रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन, सारे ठीक है इलेक्ट्रॉन सर। सेम नहीं होते, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। और दो एनर्जी लेवल के बीच बीच का गैप भी अलग अलग होता है। तो मैं आपको इसको और क्लियर करता हूँ। वो जो मैंने जो स्लाइड दिखाई थी, ये वाली, तो इसमें दिख रहा है ना, क्लियर दिखे। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस देखिए आप, हम्म। और इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस देखिए, काफी फर्क है ना। आगे ऊपर तो बहुत कम है। हम्म। ये सब एनर्जी स्टेट ही तो है, बट गैप देख रहे हो आप, यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है, हम्म। यहाँ पे कितना कम गैप है, और यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब एकदम बहुत ही कम गैप है, ठीक है। हम्म। तो ये अलग अलग गैप पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। हाँ हाँ, तो हम यहाँ तक आ गए थे, लास्ट इसका क्वांटिसाइज्ड, हाउ इट इज क्वांटिसाइज्ड, ओके। तो जो आपका जो ये है एंगुलर मोमेंट, उसका जो फॉर्मूला होता है, इसको आप रट लीजिए, है ना, अभी डिराइव करने का मत सोचिए, सॉरी। ओके, सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को अब हम थोड़ा थोड़ा इस पे बात करेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। एम वी आर इज इक्वल टू हो गया आपका एंगुलर मोमेंट। चलो ये तो आपको पता है, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में इसको डिराइव किया था। जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू से हमको क्या पता चलता है? एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, ये फिक्स रहेगा। कांस्टेंट हमेशा, कोई भी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, पता है आपको। कोई भी यस सर। कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। 2, ये भी फिक्स है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। और पाई, पाई की वैल्यू भी फिक्स है, हम्म। ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू फिक्स है, तो इन तीनों की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो बचा क्या? अब इसको मैं एन। सपोज, हाँ, इन तीनों को मैं एक्स लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला विल बी, ये इक्वल टू हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एक्स, ओके, वेयर एक्स इज फिक्स्ड। मतलब एक्स फिक्स है, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। हम्म। तो चेंज हो रही है सिर्फ एन की वैल्यू, और एन क्या है? आपके एनर्जी स्टेट है, जो मैं बता रहा था ना, एनर्जी स्टेट, वो एनर्जी स्टेट है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह। तो अब आप इसमें एन की वैल्यू रखेंगे, तो सबसे पहले आप वैल्यू क्या रखेंगे? 1, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1। तो आपकी जो एंगुलर मोमेंट की वैल्यू आएगी एक्स। फिर आप रखेंगे 2,
n इज इक्वल टू 2, तो कितना आएगी वैल्यू, यहाँ पर 2 रखिए, 2 इंटू कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2x, तो ये 2x हो जाएगा सिंपली, है ना। फिर 3 रखेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, जो भी रखेंगे आगे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या समझाना चाह रहा था, लास्ट पॉइंट है मेरा ये, कि यहाँ से अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपकी वैल्यू, जो एंगुलर मोमेंट की वैल्यू है वो x होगी या 2x होगी या 3x होगी, बट इसके बीच की वैल्यू नहीं होगी, इसके बीच की वैल्यू नहीं होगी इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 ही हो सकती है, दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती ना। तो इसलिए इसकी जो एंगुलर मोमेंट की वैल्यू है वो भी x 2x 3x लाइक दैट ओनली होगी, ठीक है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंट है वो क्वांटिसाइज्ड है, क्वांटिसाइज्ड मतलब भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसको एंगुलर मोमेंट को हमने बोर्ड ने क्वांटिसाइज किया था। ये बहुत अच्छी चीज बोर्ड ने एक्सप्लेन की थी कि जो आपके एनर्जी लेवल है वो क्वांटिसाइज्ड है, ओके। ये स्लाइड में भेजूंगा, इसको अच्छे से थोड़ा डिराइव करिए, ठीक है। तो ये लास्ट वाली लाइन यही बोलती है कि आपका एंगुलर मोमेंट इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई बाय h and 2 पाई, इंटीजर्स, जो भी इंटीजर्स है आपका 1 2 3 वो मल्टीप्लाई बाय h अपॉन 2 पाई, दैट मींस दैट एंगुलर मोमेंट इज क्वांटिसाइज्ड, ठीक है। मतलब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी रखेंगे तो उससे हमको फिक्स वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है, क्वांटिसाइज्ड वैल्यू मिलती रहेगी, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे उन्होंने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंट है वो क्वांटिसाइज्ड है, ठीक है। तो अभी आज के लिए मुझे लगता है ये सफिशिएंट है, ठीक है। और कल हम वापस थोड़ा रिवाइज करके आइए, ओके। और अभी अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कल ये पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, मोर थ्योरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी जो हमने पढ़ा है उसी को हम हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी स्टूडेंट तो वापस कुछ आए थे छोड़ के भी चले गए, मतलब अभी तो 4 स्टूडेंट हैं, चलो जो भी, ठीक है। तो कुंदन जी आप इसका ओके सर। भेज देना। और तो फिर हम उषा एंड अनिल, आर देयर, उषा, यस सर। हाँ ठीक है आप हो ना वहाँ पे, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, है ना। ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू।